So today we will learn that how to draw a hexagon. It means how to draw a regular hexagon. Regular hexagon means this particular property of the hexagon is its internal angle. I am talking about regular hexagon. Its internal angle must be of 120 degree. Total summation of the angles of hexagon is 720 degree. 720 डिग्री इतना समेशन होता है रेगुलर हेक्सागन के इंटरनल एंगल का, एंड इट्स 6 साइड्स आर आल्सो गोइंग टू बी सेम. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ 2 हेक्सागन्स. अब आप कहोगे कि सर 2 हेक्सागन किस लिए ड्रॉ करने हैं? Because you can see that your hexagon may be like this. Means there may be its side you can see at left and right hand side. उसकी एक साइड, उसकी भुजा, उसकी एक एज लेफ्ट या राइट साइड में आती है. ऐसे एक हेक्सागन होता है. और दूसरा एक हेक्सागन होता है जहां साइड में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर आता है. ओके, सच काइंड ऑफ दी 2 टाइप्स ऑफ दी रेगुलर हेक्सागन कैन बी द पार्ट ऑफ योर प्लेन. ऐसे 2 टाइप के हेक्सागन आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं या हम ड्रॉ करने वाले हैं हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस प्लेन चैप्टर में, और इससे आगे जो भी चैप्टर में हम डील करने वाले हैं उसमें. सो वी मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द हेक्सागन करेक्टली. अगर वो साइड पे रेस्ट होता है तो हेक्सागन कैसे ड्रॉ करना है, कॉर्नर पे रेस्ट होता है तो हेक्सागन कैसे ड्रॉ करना है. So first of all, to draw such kind of the regular hexagon, you can write one sentence that draw a hexagon draw a hexagon of side 30 mm, below that write down A in such a way that it is resting on
its sides and next line be in such a way that it is resting on its one of the corner okay, write down it. What is the side of your hexagon? 30 mm. 30 30 mm. mm. Absolutely correct. So first of all, you will have to write that here in the given things, side of the hexagon is equal to 30 mm. 30 mm का hexagon हमें ड्रॉ करना है. Okay. So now what you need to do, you need to take exactly 30 mm distance in compass and mark a faint circle. See, faint, that word is important. Mark a faint circle with 30 mm radius. आपको क्या करना है, पेज पे 30 mm रेडियस लेके एक सर्कल मार्क करना है. ओके, और वो फेंट होना चाहिए. सो दैट इज योर स्किल. ओके, आपका ये स्किल है कि 30 mm का सर्कल आप कैसे मार्क करते हो. फेंट, हल्के हाथों से आपको 30 mm का सर्कल मार्क करना है. And I think yesterday I have discussed with you regarding how to draw this circle by using a proper compass setting. मैंने ये पार्ट आपसे डिस्कस किया था. Here no need to mark the center point of the circle. No need to write any dimension of the circle because we are interested to draw the hexagon. Now first hexagon, पहले हेक्सागन कैसा है? इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स एजेस, यानी कि लेफ्ट और राइट में एजेस आने चाहिए, उसके साइड्स आने चाहिए. दो, सो व्हाट यू विल हैव टू डू नाउ, you will have to do one thing, that you need to mark a vertical line passing through the center of circle. In this way, faint a line. Okay, very faint. It must be very faint.
Have you drawn it? Have you drawn it? Yes, sir. Yeah. Now आपके इस सर्कल का रेडियस 30 mm है, तो ये जो रेडियस है वो रेडियस आपको वैसे ही रखना है, उसमें चेंज नहीं करना है. 30 mm radius in the compass you will have to take. Now put the needle of your compass, pointer of your compass on this particular point, where at top point. और आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट और राइट 30-30 mm पे दो मार्क बनाने हैं. इट मे बी इन दिस वे. लेफ्ट को राइट को you need to put 2 marks. कंपास में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 30 mm. Absolutely correct. Absolutely correct. Now you need to refer this second point once again, which is at the bottom of this circle. और वहां से भी एक सेम मेथोडोलॉजी है. You need to mark 30 mm from both the sides. In this way. Have you drawn it? Yes, sir. Now you need to join those all points with dark line with the help of your pencil and scale, this way. And you can see that your hexagon, which is resting on its one of side, is in front of you. And you can check that its all sides are equal and its internal angle is of 120 degree. And you will have to take care that अगर मैंने इन दोनों पॉइंट से कोई लोकस निकाला तो वो एक ही लाइन से पास होना चाहिए. ओके, अभी मेरा टू द स्केल नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन यू विल हैव टू टेक केयर दैट और योर डायग्राम इट शुड बी एग्जैक्टली इन अ सेम पैशन which we can observe on the screen. तो जो ब्लैक कलर से मैंने निकाला है वो बहुत ही फेंट होना चाहिए and remaining part must be dark one. Only hexagon should be dark one. Remaining all things must be faint. Okay, तो ये हो गया आपका hexagon which is resting on one of its side. Now next hexagon we will draw by the same method. So first of all, what you need to do, you need to draw a circle with 30 mm diameter, sorry, radius.
जितनी साइड है होगी हेक्सागन की उतनी ही रेडियस लेनी है आपको. But now it is resting on corner because it is B. So what you will have to do? You will have to write a horizontal line passing through its center. This part must be penned. Then you need to take 30 mm distance in a compass. And now put the pointer or the needle of your compass on leftmost point on the periphery of your circle. I have marked it with the red dot. And then you will have to mark two lines. One is at top side, another is at bottom side. Then refer this point at right hand side on the circumference of your circle and follow the same method. Here you need to mark 1 point and at bottom side you will have to mark 1 point. And then you need to join those points in this way. And now you can see that the second type of the hexagon, which is resting on its corner, is in front of you. Is it easy? Yes, sir. Or is it complicated? It is very easy, but to avoid the complication, you must practice it at home. तो आप ध्यान में रखिए कि जब आपकी साइड हेक्सागन की रेस्ट होगी तो आपको वर्टिकल लाइन सर्कल में ड्रॉ करनी है और जब कॉर्नर रेस्ट होगा तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कल में ड्रॉ करनी है. जितने साइड का हेक्सागन है उतने ही साइड कंपास में लेके आपको सर्कल भी बनाना है और ये मार्क्स भी करने हैं. नाउ यू कैन टेल मी वेदर योर हेक्सागन इज अ रेगुलर वन, वेदर इट इज हैविंग द सेम लेंथ. Yes, sir, regular is right. Yeah, okay. Now we'll proceed towards our syllabus, and first of all I want to introduce you some of the planes, and from that you can imagine the things. Okay, now the first type of our plane is a plane which is parallel to HP and perpendicular to VP. So I want to show you here, it's a variety. Okay. Now you can see that this is the one of the plane. It is my mobile actually. So you can consider it as a rectangular plane. Okay. When you will keep your plane in this way, तो मुझे बताइए कि ये प्लेन यहां मेरा नीचे इसके HP है और यहां VP है. This palm of my hand is VP and
my palm, if I will keep under this way to this mobile, so it is HP. तो HP और VP आपको क्लियर हो गया? तो देख लीजिए कि अगर मैंने प्लेन ऐसे होल्ड किया तो मैं कह सकता हूं कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू HP. अगर प्लेन आपने बढ़ा दिया इंफिनिटी तक और HP भी बढ़ा दिया इंफिनिटी तक, तो प्लेन HP को कट नहीं करेगा, बट इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द VP. VP यानी वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल करता है. ओके, सो दिस इज द प्लेन. अब मुझे बताइए कि फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखता है? लाइन सर. लाइन, एग्जैक्टली. फ्रंट व्यू में आपको पूरा प्लेन नहीं दिखेगा. फ्रंट व्यू में आपको दिखेगी लाइन, यानी कि इसकी एज, जो एज आपके सामने है ये एज दिखेगी. व्हेन योर प्लेन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, तो फ्रंट व्यू में आपको दिखेगी एज. और टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा? जब ऊपर से आप देखोगे, टॉप व्यू में आपको दिखेगा रेक्टेंगल. ओके, टॉप व्यू में आपको दिखेगा रेक्टेंगल. इट मींस जो ओरिजिनल शेप है उसे हम इस चैप्टर में ट्रू शेप ऐसे कहते हैं. तो जो ये ट्रू शेप है, वो ट्रू शेप हमें कहां दिखती है? टॉप व्यू में दिखती है. और फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखता है? एक लाइन दिखती है. Okay, so this is the first type of the plane. Write down point number 1. Plane parallel to HP, plane parallel to HP and perpendicular to VP, and perpendicular to VP. In this position, line is observed in front view, and original shape of the plane, in bracket true shape, is observed, true shape is observed in top view. Now we will learn second type of the plane, and definitely the second type of the plane is in this way. This plane is parallel to VP. Palm of my hand, मेरा जो हाथ है ये VP है और ये जो है मोबाइल ये प्लेन है. तो देखिए, my plane is parallel to VP and it is perpendicular to HP. HP मेरा नीचे है, तो ये HP को परपेंडिकुलर है और VP को पैरेलल है. Now you can tell me, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखता है? Plane. Rectangle. Yes, means here it is rectangle, so
whatever shape of the plane, true shape of the plane is there, it is visible in the front view. और टॉप व्यू में आपको क्या दिखता है? Line. Line, absolutely correct. Means totally reverse position of the case 1 you can find out in the second case. Okay, so our second case is, our second position is a plane parallel to VP, and perpendicular to HP. Perpendicular to HP. Perpendicular to HP. Okay, write down. When, sorry, not when, write down. In this case, true shape of the plane is visible in front view. And its edge view is observed in top view. Okay, now third case or third position, you can write down. A plane perpendicular to VP, a plane perpendicular to VP and inclined to HP, तो ये जो प्लेन है, ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to make the plane perpendicular to HP, perpendicular to VP, sorry, ये VP है, मेरा हाथ यानी VP है, इसे ये perpendicular है, but it is inclined to HP, HP मेरा नीचे है, तो ये HP को incline करता है. Okay, so plane will be observed in this way. तो आपको फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है? लाइन दिख रही है, लेकिन ये लाइन पैरेलल लाइन है क्या? नहीं, inclined line. Yes, it is inclined line. Means inclination with the HP is visible over here. In a front view क्या होता है? Inclination with the HP front view में दिखता है. This plane is perpendicular to VP and inclined to HP. तो फ्रंट व्यू में दिखता है inclined line. और ये जो इंक्लिनेशन होता है, वो इंक्लिनेशन कौन सा होता है? इंक्लिनेशन विथ HP होता है. ओके, और टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा?
टॉप व्यू में क्या दिख रहा है? फ्रंट व्यू में इंक्लाइन लाइन दिख दी, टॉप व्यू में क्या दिख रहा है? Inclined plane. इंक्लाइंड प्लेन नहीं, Plane, आपको sir. प्लेन ही दिखता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो Apparent. ओरिजिनल, यस, एपरेंट लेंथ इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व, नॉट ओरिजिनल लेंथ। यानी कि आपको ट्रू शेप नहीं मिलता है, उसका आपको एपरेंट शेप मिलता है, यानी रिड्यूस्ड शेप मिलता है, लेकिन शेप वही मिलेगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा। नाउ दिस चैप्टर इज मोर इंटरेस्टिंग and this chapter is you can say that very comfortably you can solve problem of this your projection of plane. Now this type is there, I have put it in front of you, but it will be more clear when I will draw an diagram in front of you. Okay, so write down. We will take one problem and we will start with this problem. A plane which is rectangular in shape, has named ABCD, has named ABCD with dimension 50 to 80 mm, 50 to 80 mm, has its shortest side AB, in the HP, underline this, in the HP. The surface of the plane is perpendicular to VP, and inclined at 30 degree to HP, 30 degree to HP, full stop. Complete projection of plane, complete projection of plane. Okay, so first of all, somebody should read this problem without wasting lot of time, because we have only 15 minutes to complete this problem. Okay, so immediately we will enlist the given things fast. Somebody else start reading it loudly. Hello, are you there? Yes, sir. Yes. Rectangle ABCD. Yes, start reading it. A plane which is a shape
has named ABC dimension 50 to 80 Yes, mm. yes. Please stop. As Please its stop. shortest Please. Hello. Somebody else, please read it because his voice is cutting. Nagesh Gajre. Yes, sir. Read this problem step by A, step. a plane which is rectangular in shape has named ABCD with dimension 50 degree to 80%. 50 has degree 50% to 80% has its percentage. Hello, Whether sir. percentage have you written? Hello. Have you yes, written? sir. Everybody, have you written percentage? No, sir. No, sir. What you are listening and what you are writing, see, that's why I'm telling to read this problem to you people. It is 50 to 80 mm. Am I correct? Sir. Yeah. Yes. So this dimension are 50 mm by 80 mm. Yes, go ahead. Has its shortest side AB in the HP. The surface So of the you, एक minute. You will have to note this information very carefully. Shortest side is in HP. Okay, underline this particular word. Go ahead. The surface of the plane is perpendicular to VP and inclined at 30 degree to HP. Surface of the plane, it means the plane itself. You will have to understand that point. प्लेन का सरफेस इंक्लाइंड है, इसका मीनिंग क्या है कि ये सारा प्लेन ही इंक्लाइंड है. ओके, मेरा शरीर सोलापुर से पंढरपुर जाता है, यानी मैं ही जाता हूं. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस गेम ऑफ द वर्ड्स. ओके, तो उन्होंने कहा है कि सरफेस of the plane is perpendicular to VP and inclined to 30 degree to HP. इसका मीनिंग है कि प्लेन परपेंडिकुलर टू VP है. ओके, परपेंडिकुलर टू VP है और इंक्लाइंड टू HP है. कितने डिग्री से? 30 डिग्री से. मीन्स यहां आपका थीटा जो है वो थीटा कितना हो गया? आपका थीटा कितना हो गया यहां? 30 डिग्री. So your theta is 30 degree and we need to complete the projection. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है जो आपको नोट डाउन करना है. आपने गिवन थिंग्स लिख लिए हैं? यस सर. या तो फर्स्ट पार्ट कभी भी प्लेन में और सॉलिड में भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको पहले देखना है कि विच पार्ट इज केप्ट वेयर. तो उन्होंने क्या कहा है कि शॉर्टेस्ट साइड इन एचपी. ओके, शॉर्टेस्ट साइड जो है वो एचपी में रखी हुई है. ओके, जब वो आपको कहते हैं कि एचपी में कुछ तो रखा है, तो आपको प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट करना है? सॉल्यूशन उसका XY लाइन के नीचे से स्टार्ट करना. सपोज दिस इज द XY लाइन. दिस इज द XY लाइन. थोड़ी लंबी लाइन खींच लीजिए. नेम इट एज X एंड नेम इट एज Y. और उन्होंने क्या कहा है? शॉर्टेस्ट साइड इज इन HP. तो जब आपका
आपके प्लेन का कुछ हिस्सा अगर HP में रखा है, तो ये एक बात आप फिक्स कर लीजिए मन में कि यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बिलो XY लाइन। अगर आपको HP में उन्होंने ऑब्जेक्ट आपका रखा है या कुछ भी बात रखी है, तो आपको प्रॉब्लम कहां से सॉल्व करना है? XY लाइन के नीचे से सॉल्व करना है। और अगर उन्होंने कोई साइड या कोई कॉर्नर या कोई भी पार्ट आपके प्लेन का VP में रखा है, तो आपको प्रॉब्लम कहां से सॉल्व करना पड़ेगा? ऑब्वियसली XY लाइन के ऊपर से। ओके, सो देयर इन योर नोटबुक राइट नंबर 1 note if any part of the plane is lying in HP or above HP, then solution of the problem must be started from below XY line. Number 2, if any part of your plane is kept in VP or in front of VP, then solution to such problem must be started in VP. That is not in VP स्क्रैच कर दीजिए, in VP स्क्रैच कर दीजिए, must be started above XY line. Okay, now you have written it. और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो HP में रखा हुआ है, यानी कि हमें XY लाइन के नीचे से प्रॉब्लम स्टार्ट करना शुरू करना पड़ेगा। ये तो आप फिक्स हो गए। नाउ सेकंड थिंग इज they have mentioned that its shortest side is in VP.
इन्होंने क्या कहा है कि इसकी शॉर्टेस्ट साइड जो है, रेक्टेंगुलर में दो साइड होते हैं, एक साइड जो होती है वो छोटी होती है, दूसरी साइड जो होती है वो बड़ी होती है। ओके, तो जो शॉर्टेस्ट साइड है, ये रेक्टेंगल कितना है, 50 बाई 80 mm का रेक्टेंगल है, तो उसकी शॉर्टेस्ट साइड हो गई 50 mm। तो ये जो शॉर्टेस्ट साइड है वो एचपी में रखी हुई है। तो एचपी में या वीपी में जो पार्ट रखा हुआ है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए कि एचपी में या वीपी में जो पार्ट रखा हुआ है और उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, तो ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है, वो पार्ट XY लाइन को परपेंडिकुलर करके लेना है। दैट इज आवर नोट नंबर 3। ओके, राइट डाउन नोट नंबर 3। The part of plane which is resting in HP, or VP have to be drawn perpendicular to XY line, Okay, so now we will start solving it. हमारे पास ABCD रेक्टेंगल है जिसकी AB साइड शॉर्टेस्ट है और वो HP में रेस्ट होती है। तो मैं पहले क्या करूंगा, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर हो गया कि मेरी साइड एक HP में है, HP में है, तो मुझे XY लाइन के नीचे सॉल्व करना है। जब आप 2-3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये मन में बैठ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो इफ यू आर unable to know how we will have to start below XY line, then don't worry about it. एक ओनली बात ध्यान में रखिए कि अगर आपका प्लेन HP में रखा है तो आपको XY लाइन के नीचे से स्टार्ट करना है, और अगर आपका प्लेन VP में रखा है तो आपको XY लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना है। तो यहां हमारा जो प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन, वो HP में रखा है, तो प्रॉब्लम हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नीचे हमें जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ करना है कि इसकी शॉर्टेस्ट साइड जो है वो HP में होनी चाहिए, और शॉर्टेस्ट साइड कौन सी HP में होनी चाहिए, AB साइड HP में होनी चाहिए। तो जो ये AB साइड है वो हम क्या करेंगे, हम उसे XY लाइन से परपेंडिकुलर बना देंगे। यानी पहले मैं एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करूंगा, इस प्रोजेक्टर पे मैं पहले एक पॉइंट मार्क करूंगा, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा पॉइंट A। पॉइंट को नाम दिया मैंने पॉइंट A, और AB की जो लेंथ है वो 50 mm है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 50 mm डिस्टेंस इन कंपास, इन स्केल और इन कंपास, and I will mark at 50 mm. मैं यहां क्या करूंगा, 50 mm पे मार्क करूंगा। ओके, and this particular point is my point B. ये मेरा पॉइंट B हो गया, और यहां मेरा पॉइंट हो गया A। Now what I will do, I will draw a dark line AB.
ये मेरी डार्क लाइन बन गई ए बी। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली इसके डायमेंशन लिखूंगा, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड द डायमेंशंस। So this is 50 mm. Okay, now what I will do, I will take 80 mm distance and I will draw a line of 80 mm from this point A and point B. अब मैं क्या कर रहा हूं, 80 mm की लाइन निकाल रहा हूं, because I want to complete the rectangle. In this way. Now, here also, I will give the dimension. I will extend this. This dimension is going to be 80 mm. In this way. And I will name this point as a C and this point as a D. This much part I have drawn. तो ये हो गया मेरा प्लेन का टॉप व्यू। अब आपको समझ में आया होगा कि मेरा कौन सा पार्ट एचपी में था, शॉर्टेस्ट साइड। तो ये जो शॉर्टेस्ट साइड है वो मैंने क्या कर ली है, ये मैंने शॉर्टेस्ट साइड परपेंडिकुलर XY लाइन को ड्रॉ कर दी है। मेरा प्लेन एचपी में था इसलिए मैंने टॉप व्यू से स्टार्ट किया और मैंने शॉर्टेस्ट साइड जो एचपी में रखी थी वो XY लाइन को परपेंडिकुलर कर दी। तो आपको ये बातें याद में रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट एचपी में होगा तो बिलो XY लाइन स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट वीपी में होगा तो अबव XY लाइन स्टार्ट करेंगे। अगर जो भी पार्ट आपका एचपी में या वीपी में है वो आपको क्या करना है, XY लाइन को परपेंडिकुलर करके लेना है। नाउ यू नीड टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू। अब मेरा फ्रंट व्यू क्या आएगा, फ्रंट व्यू आएगा लाइन। ओके, और आप देख सकते हैं कि बी पॉइंट और ए पॉइंट एक ही प्रोजेक्टर पे आते हैं। तो ये हो गए मेरे पॉइंट ए डैश बी डैश और ये हो गए मेरे पॉइंट सी डैश डी डैश। यानी मैंने क्या कंप्लीट कर दिया, I have completed the front view. I have completed the front view now. Now the next thing is they have given the inclination with the HP. तो HP के साथ जो inclination होता है वो above XY लाइन होता है या below XY लाइन होता है। थीटा हम अबव XY लाइन लेते हैं या बिलो XY लाइन लेते हैं, यस अबव XY लाइन लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट व्यू में क्या करूंगा, यहां मैं एक पॉइंट ले लूंगा इस डायग्राम से थोड़े डिस्टेंस पे। ओके, और मैं इसे फिर से नाम दे दूंगा ए डैश बी डैश।
थोड़े डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है आपको। और कितना इंक्लिनेशन दिया है? 30 mm का इंक्लिनेशन दिया है, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 30 mm पे एक फेंट, 30 डिग्री पे एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ए डैश बी डैश से 30 mm पे एक फेंट लाइन में ड्रॉ कर दूंगा इन दिस वे। लॉन्ग भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा। ओके, नाउ आपको क्या करना है, कंपास लेना है और उसमें ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश इतना डिस्टेंस लेना है। पहले डायग्राम का जो फ्रंट व्यू है, ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश इतना डिस्टेंस लेना है, यानी कि 80 mm डिस्टेंस लेना है। बिकॉज इन सेकंड व्यू वी हैव ए डैश बी डैश, हमें सेकंड व्यू में सी डैश डी डैश चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश इतना डिस्टेंस कंपास में लेना पड़ेगा। और इस सेकंड व्यू में ए डैश बी डैश पे रख के आपको क्या करना है, सी डैश डी डैश इतना डिस्टेंस लेके कट करना है। एंड यू विल हैव टू नेम देयर C dash D dash. Here you can write this is your theta 30 degree. Okay, now you will have to draw a projector from A dash B dash and C dash D dash. Come on, hurry up. Now you will have to draw this in a dark line. This much part you will have to do. यानी कि देखिए कि आपका प्लेन, उसकी एक साइड ए बी एचपी में रखी हुई है और अब वो 30 डिग्री को इंक्लाइंड हो गया प्लेन, मींस इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो फ्रंट व्यू में आपको इंक्लाइंड लाइन दिख रही है। अब टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगल का रिड्यूस्ड शेप दिखेगा। एंड हाउ टू ड्रॉ इट, सी इट इज कमिंग ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल एक्सटेंड the locus of this line AD सी, इस पहले व्यू से जो AD आता है उसका लोकस एक्सटेंड कीजिए और BC का जो लोकस आता है वो भी एक्सटेंड कीजिए। अब आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। ये देखिए, ए का प्रोजेक्टर और ए का लोकस, इट मींस दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी और दिस इज योर पॉइंट डी। ये फेंट ऐसे डायग्राम बननी चाहिए। और अब जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल को आपको क्या करना है, बस डार्क लाइन करना है। ये ए टू बी, ये बी टू सी, सी टू डी एंड ए टू डी। अब देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था कि इंक्लाइंड लाइन फ्रंट व्यू में दिखेगी और टॉप व्यू में रिड्यूस्ड रेक्टेंगल आएगा। देखिए आपका रेक्टेंगल रिड्यूस्ड आया है या नहीं आया है,
आया है ना? हेलो, हैव यू ड्रॉन इट? Yes, sir. या हाँ, तो रिड्यूस्ड रेक्टेंगल आया है क्या आपका? Yes, sir. व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? What is the length of AD? Have you drawn it? Then you must tell it. कितने mm से वो रिड्यूस हुआ है? AD कितना आता है आपका? 69 69 70 या ओके, मीन्स अराउंड 70, यानी 10 mm का रिड्यूस होता है डायग्राम। 10 mm की लेंथ कम होती है और आपकी एपरेंट लेंथ आती है 70 mm. No need to write there apparent length is 70 mm in this way, but you must understand that when your plane is inclined to HP, तो HP में इंक्लिनेशन जो है, फ्रंट व्यू में इंक्लिनेशन दिखेगा HP का इंक्लिनेशन, और टॉप व्यू में आपको apparent शेप मिलेगा. सो दिस शेप इज द apparent शेप. और बातें जो याद रखनी है वो जो मैं बता रहा हूं फिर से, आई एम रिपीटिंग इट. नंबर 1, अगर आपके प्लेन का कोई भी पार्ट HP में हो तो आपको प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? टॉप व्यू, Below XY. टॉप व्यू, बिलो XY, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आपके डायग्राम का कोई पार्ट VP में रखा है ऐसे उन्होंने कहा, तो आपको कहां स्टार्ट करना पड़ेगा? above XY line, अबव XY लाइन स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके. नंबर 3, जो पार्ट आपका HP में रखा है या VP में रखा है, ओके, शॉर्टेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड, जो भी कुछ हो, जो पार्ट आपका VP में रखा है या HP में रखा है, वो पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू XY लाइन करना पड़ेगा. यहां मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट साइड इन HP, तो मैंने शॉर्टेस्ट साइड AB यहां परपेंडिकुलर टू XY लाइन ड्रॉ कर दी. अगर मैंने कहा कि लॉन्गेस्ट साइड इन HP, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 80 mm की जो लाइन है, वो लाइन XY को यहां परपेंडिकुलर करनी पड़ेगी. ये बात समझ लीजिए. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज inclination with the HP is always above XY line and inclination with the VP is always below XY line. You need to mention this note 3 somewhere in your notebook, that inclination with HP is always above XY line and inclination with VP is always below XY line. तो ये फर्स्ट ही प्रॉब्लम है हमारा, और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल. बट दिस नोट्स, these 5 notes are very much important and you will have to remember it throughout this particular semester when we are dealing with engineering graphics. Okay, have you drawn this particular figure? yes sir. Your apparent length is 70 mm of AD. Yes, sir. Yes, means you have drawn it very correctly. Okay, so tomorrow is a weekly off, so you will have to solve the assignment and the further problem we are going to see on Monday. Okay, तो ये प्रॉब्लम है, पहले आपने जैसे है वैसे ड्रॉ किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आई, फिर भी डोंट वरी, व्हेन वी आर डीलिंग विद मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन अंडरस्टूड इट. नाउ
अगर आपने देखा तो ये प्रॉब्लम हमने 2 स्टेज में सॉल्व किया है, एक स्टेज में नहीं सॉल्व किया है। पहला स्टेज है जहां हमने ट्रू शेप ड्रॉ किया था, ट्रू लेंथ ड्रॉ की थी, वो एक शेप है। दूसरा जो स्टेज है वो इंक्लिनेशन विथ एचपी और वीपी का स्टेज है। तो दिस प्रॉब्लम, सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नोन एज अ 2 स्टेज प्रॉब्लम। ओके, और इसमें अभी 3 स्टेज भी है, लेकिन वी विल गो टू दैट 3 स्टेज प्रॉब्लम लेटर ऑन। तो पहले हम 2 स्टेज प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो दिस इज द 2 स्टेज प्रॉब्लम। ओके, so you must always ready to solve such kind of the problem, and in future on next lecture we are going to solve much more problems of this 2 stage, and the 5 notes will be clear to everybody. Okay, so try to understand it, try to redraw this diagram at home. If you will not understand anything out of these 5 notes also, then you can call me, you can ask me, I am ready to answer here always. So I'll stop my lecture here itself, but before that I want to conduct the attendance. So just give me the attendance immediately. Those who are absent, only their number I will call. Today is the 3rd. (16), (19), (25), (31), (41), (43), (53), (56), (59), (61), (66), okay.